Welcome students to the editorial explainer series brought to you by CLAT Gurukul. जैसा कि आपको पता होगा कि इस editorial explainer series में we keep coming up with different topics from various newspapers, but primarily we focus on the Hindu and the Indian Express. तो ये टॉपिक जो हमने पिक किया हुआ है, दिस इज फ्रॉम द हिंदू, जो 1st of January को हिंदू पेपर में जो एडिटोरियल न्यूज पीस, आई वुड रादर से इट्स अ न्यूज पीस विच हैज बीन कवर्ड इन द हिंदू न्यूज पेपर. तो आज प्राइमरली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. नाउ दिस न्यूज पीस इज प्राइमरली अबाउट द रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट that is happening and how is it boiling all over the world, है ना, और कैसे वर्ल्ड लीडर्स इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी एंड काउंटर स्ट्रेटजी बन रही है यूएस एंड रशिया के बीच में, यूएस रेस्ट ऑफ यूरोप, रशिया रेस्ट ऑफ यूरोप के बीच में क्या डायनेमिक्स बन रहा है, इसको इसमें इस न्यूज पीस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. This is something which is going to be very important for you people who are preparing for the CLAT and other competitive exams, है ना. जैसा कि आपको पता होगा कि CLAT में जो changed syllabus है उसमें the importance of a deeper insight into the news pieces and the articles that keep coming in newspapers is very important. पहले जो पैटर्न था उसमें the news itself was important. I mean, if you were aware about the headlines, that was good enough. But now you have to delve deeper into the news pieces. And that is why through this editorial explainer series, we have been coming up with different important exam relevant news articles. और उसको हम लोग briefly आपको explain करना चाहते हैं ताकि उससे in and around जितने questions पूछे जा सकें, your likelihood of answering them becomes higher. ठीक है. So without wasting any further time, let us straight away jump to the article which has come up in the Hindu newspaper. तो अगर आप देखेंगे तो this article is about Biden-Putin trade warnings over Ukraine. मतलब they are threatening and counter-threatening each other on the Ukrainian crisis. Now, as you must be aware, Ukraine is a neighbor of Russia, and it's a country, it is the second largest country in Europe after Russia. Russia happens to be the world's largest country in area, है ना, and Ukraine happens to be the second largest country across Europe in terms of area, है ना, and they happen to be neighbors. Now there has been certain conflict between Russia and Ukraine which got started from the year 2013 itself. ठीक है. So and of late from 2020 the Russian army has, in fact the Russian Federation has been building up its army across the border which it shares with Ukraine. ठीक है. तो अब उसको लेके वर्ल्ड डायनेमिक्स क्या चल रही है, that we will try to understand through this particular news article. ठीक है. तो इसमें अगर आप देखते हैं दिस न्यूज आर्टिकल को, तो दे आर हियर, यू कैन सी प्रेसिडेंट बाइडेन टॉकिंग टू रशियन प्रेसिडेंट, है ना, और उसके बाद से इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ इट सेज दैट the ties between US and Russia are strained due to Ukraine, है ना. और उसके बाद से the US has said that it might come up with certain sanctions, economic sanctions over Russia, and why the Russian president again has threatened that this sanction, or rather the economic sanctions put over by US and its allies in Europe is going to be a colossal mistake by them. It's a huge mistake that they might do if they come up with this thing. ठीक है. तो इसमें देखिए, let me give you a brief about the recent crisis. अब इसमें at this point in time आपको पता होगा कि 2013 में
there was this Ukrainian president who was a great supporter of Russia, and they decided that they should be the part of the Russian Economic Forum rather than the EU, that is European Union. But he faced a huge protest in all over Ukraine, and उसके बाद से क्या हुआ कि his government was overthrown, and eventually when his government was overthrown, eventually in 2014 Russia attacked Ukraine, and it annexed a certain portion of Ukraine which is called as Crimea, है ना. तो 2014 में उसका annexation हो गया from Ukraine, and now if you have a look at it, you will find that यूक्रेन जो है वो उसका साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो क्रीमिया है, एंड क्रीमिया का एथनिक पॉपुलेशन कुछ ऐसा है कि मोर देन 70% ऑफ दैट क्रीमिया का पॉपुलेशन इट यूज टू बी पीपल ऑफ रशियन डेसेंट. ठीक है, तो वहां के लोग जो है वो रशिया के सपोर्टर थे. रशिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड इट अनेक्स्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन. ठीक है, अब ये एक यूक्रेन जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑल ओवर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग इसको मैप लेके समझते हैं. आप देख रहे होंगे ये रशिया का मैप है, ऑल्दो दिस मैप हैज बीन कट शॉर्ट, है ना, ड्यू टू स्पेस इश्यूज. लेकिन रशिया जो है आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ एशिया. आप जो है ये जानते होंगे कि पहले जो है 89 के पहले इट यूज टू बी कॉल्ड एज यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक, है ना. तो यूक्रेन ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, बट 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव की जो गवर्नमेंट थी उसके बाद से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया. कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ इन 1989 विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो लगभग 7 कंट्रीज बने थे, उसमें से एक प्रोमिनेंट कंट्री है यूक्रेन, है ना. यूक्रेन का भी मिलिट्री माइट काफी अच्छा है, बट इट इज नॉट कंपेरेबल टू यूएसएसआर. बट इन 1989 इनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद से जो भी कंट्रीज बने उनका कुछ का तो कॉर्डियल रिलेशनशिप है रशिया के साथ, और कुछ का जो है नॉट सो कॉर्डियल रिलेशनशिप है. अब देखिए इसमें यू मस्ट बी अवेयर कि यूएस जो है अपना डोमिनेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो है वो बनाना चाहता है ना. एंड रशिया हैज ऑलवेज बीन द सेकेंड or rather the biggest opponent of this US agenda, है ना. तो वो नहीं चाहता है कि उसकी नेबरिंग कंट्री जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में आए. सो दिस ऑल स्टार्टेड इन द ईयर 2013. मैंने जब आपको बताया कि वहाँ के जो सर्टेन प्रेसिडेंट थे उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, और उसके बाद से वहाँ पे जो है वो ह्यूज प्रोटेस्ट हुए कि उनको रशियन इकोनॉमिक फोरम को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, एंड इट शुड रादर बी पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच इज अ क्लोज अलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना. तो इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ. उनका गवर्नमेंट जो है दैट वाज ओवरथ्रोन. there's a certain area called मैदान in यूक्रेन का कैपिटल कीव है, और कीव में एक मैदान स्क्वायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर these demonstrations and major cultural events take place. तो वहाँ मैदान में there was a huge protest in the year 2013 eventually which led to the throwing of the then Ukrainian president. और इसका फॉलोआउट ये हुआ कि 2014 में रशिया ने
अटैक कर दिया यूक्रेन को। अब देखिए यहाँ पे यू कैन सी द मैप ऑफ यूक्रेन आउट हियर, यहाँ पे ये यूक्रेन बना हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे मैं इसको दूसरे कलर में डिपिक्ट कर देता हूं, जस्ट वेट, ओके। नॉनदलेस लेट मी शो यू, ये जो है आपका यूक्रेन है ना, एंड यूक्रेन का ये सर्टेन पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, जो ब्लैक सी से अटैच्ड है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज क्रीमिया, ठीक है। क्रीमिया बड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का एरिया है ना। आपने क्रीमिया वॉर के बारे में पढ़ा होगा, 1853 से 1856 के बीच में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन वर्ल्ड इकोनॉमी यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो वो क्रीमिया वॉर जो है ये हुआ था, दैट इज, तो ये रीजन जो है ना ये क्रीमिया कहलाता है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द मैप ऑफ यूक्रेन, इट इज द मोस्ट साउदर्न पोर्शन ऑफ यूक्रेन। एंड अब देखो इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है क्रीमिया का कि इसको ब्लैक सी का एक्सेस मिलता है। तो रशिया, कोई भी कंट्री जो सुपर पावर बनना चाहता है, उसका एयरफोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, आर्मी स्ट्रांग होना चाहिए, उसका सी रूट्स जो है उस पे होल्ड होना चाहिए, ताकि सी रूट्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग पे अगर आपका जो ट्रेड रूट्स हैं उन पे आपका लार्जर कंट्रोल होगा, इसका मतलब यू कैन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, एंड ट्रेड, ठीक है। तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करके अपना एक मेजर होल्ड स्टे जो है वो बना लिया ब्लैक सी में, ब्लैक सी का उसको एक्सेस मिल गया। नाउ अब थोड़ा डायनेमिक समझ लिए, दिस कंट्री बेलारूस इज एन अलाई ऑफ रशिया, ठीक है, बहुत क्लोज अलाई है। तो 2014 में जब रशिया ने अनेक्स किया यूक्रेन को, है ना, और क्रीमिया को अलग कर दिया उससे, तो नाउ दिस क्रीमिया इज पार्ट ऑफ रशिया। तो साउथ में रशिया आ गया, और नॉर्थ में अगर आप यूक्रेन के नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में अगेन दिस अ कंट्री which is Belarus, which is a very close ally of Russia. तो यूक्रेन को ऊपर से भी रशिया का थ्रेट है, नीचे से भी रशिया का थ्रेट है। तो यूक्रेन ने क्या सोचा कि why doesn't it become closer to US and the European Union, है ना। और closer to US जाने के पीछे एजेंडा ये था कि if it becomes a part of the NATO के बारे में आप अवेयर होंगे, इस पे थोड़ा सा रिसर्च आप कीजिएगा, है ना। NATO जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें जिसका मेन लीडर जो है वो यूएस है। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिलिट्री सपोर्ट एंड अदर इकोनॉमिक सपोर्ट्स जो है वो यूएस प्रोवाइड करता है। तो यूक्रेन थॉट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ NATO, which is led by US, and the member countries are most of the countries of Europe, ठीक है। तो अब ये नाटो का पार्ट होना चाहता था, जिसको अपोज कर रहा है रशिया, बिकॉज अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट हो जाता है तो नाटो मिलिट्री जो है वो यूक्रेन में एंटर कर जाएगी, एंड वंस इट एंटर्स यूक्रेन, इसका मतलब है कि आपका रशिया के डोर स्टेप्स पे, एकदम डोर स्टेप्स पे यूएस की मिलिट्री जो है वो दस्तक दे चुकी है। यहां पे कौन आ गया है? यूएस आ गया। यूएस जो है वो डायरेक्ट रशिया में एंट्री का एक पॉइंट जो है वो ले लेगा, है ना। सो परसीविंग दिस पर्टिकुलर थ्रेट फ्रॉम द यूएस एंड इट्स अलाइज, रशिया जो है अपोज कर रहा है कि यूक्रेन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग नाटो, है ना। एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज एनसर्कलिंग द एंटायर बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, ठीक है, और ये अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। नाउ टिल द टाइम, मतलब बाय द टाइम वी आर डिलीवरिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, रशिया ने ऑलरेडी अपने 1 लाख ट्रूप्स जो हैं वो आर्मी फोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं बॉर्डर पे, ठीक है। अब रशिया का मिलिट्री क्लोज टू 1 मिलियन है, 9 लाख है,
और यूक्रेन का मिलिट्री जो है वो 2 लाख का है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एवरी this thing of for every military personnel of Ukraine there are 4 military personnels of Russia। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्लस इसने क्रीमिया को अनेक्स करके और पूरा थ्रेटन कर दिया है। इसका मिलिट्री माइट, इसका एयरफोर्स, इसका नेवी, ऑल ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, ये तो अपना बिल्डअप कर दिया है। अब यूक्रेन के सपोर्ट में यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आ रहे हैं, है ना। बट सिंस प्रेसिडेंट पुतिन इज वेरी एडमेंट और this entire issue might escalate and everyone wants to avoid military conflict with Russia, है ना। तो इन लोगों ने थ्रेटन किया है कि if not immediate military action, which seems to be a very remote possibility, why not putting economic sanctions on Russia। अभी ये इकोनॉमिक सेक्शन से कंट्रीज जो है क्यों डरती हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर इन सम वे और द अदर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस। उनका ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स है। और आज के वर्ल्ड सिनेरियो में अ कंट्री इज बूमिंग and it's becoming a superpower not because of its military of course एक बड़ा component है, but by the economic might that a particular country has। और ये इकोनॉमिक माइट कैसे डिसाइड करता है, आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। बाकी कंट्रीज से अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एज वेल। हो सकता है कि रशिया जो है वो कुछ इंपोर्ट भी कराता हो, है ना। तो अगर यूएस एंड अलाई कंट्रीज रशिया पे सैंक्शंस इंपोज करते हैं तो न ये किसी मेंबर कंट्री जो यूएस और यूरोप से ट्रेड करता है न उसको कोई सामान एक्सपोर्ट कर सकता है और न उससे सर्टेन इसेंशियल्स, जैसे रशिया में कुछ फूड इसेंशियल्स की भी बहुत कमी है जो वो इंपोर्ट करता है रेगुलरली, तो न वो इंपोर्ट कर सकता है न वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दिस माइट रिजल्ट इनटू द रशियन इकोनॉमी गेटिंग हेल्टर एंड स्केल्टर, है ना। और इसका फॉल आउट ये होगा कि उसके बाद से जो है वो रशिया को झुकना पड़ेगा। But this time Russia is clearly threatening that if the US and the member ally countries of Europe think that Russia might bend through these threats, तो ये it's a false notion by them, है ना। So यही कॉन्टेक्स्ट जो है अभी चल रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे, लेट मी टेल यू कि रशिया जो है इसमें नेचुरल गैसेस बहुत, नेचुरल गैस जो है वो रिसोर्सेज बहुत है। और ये क्या करता है, देयर इज अ डायरेक्ट पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू जर्मनी। अब रशिया जो है अपने ऑयल रिसोर्सेज पे, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है ना। वो इसका एक्सपोर्ट का मेजर कंपोनेंट है। अब रशिया को ये पाइपलाइन भेज रहा है। अब मान लीजिए रशिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है ना, और यूएस और मेंबर कंट्री सैंक्शंस लगा देते हैं रशिया पे। सो दिस इंपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम रशिया टू जर्मनी विल बी इंटरप्टेड, ठीक है। तो उसको एक्सपोर्ट से उसका इनकम नहीं होगा और उसकी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रेस में आएगी। तो ये सब थ्रेट के थ्रू रशिया को वो लोग जो है वो डिटर करना चाहता है कि इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द अफेयर्स ऑफ यूक्रेन। बट रशिया भी एक साइड पे ये परसीव करता है कि अगर जो है यूक्रेन नाटो का अलाई हो जाता है, अमेरिका का अलाई हो जाता है, तो अमेरिकन मिलिट्री विल कम एट द डोर स्टेप ऑफ रशिया। सो दिस इज हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज पैनिंग आउट। तो I hope that you had a better understanding of this particular conflict और इसका outcome क्या होने वाला है, that is still to be seen. But since this topic has been discussed, let us also have some brief facts about Ukraine. इसका capital जो है वो कीव है
और इसका पॉपुलेशन जो है वो 4 crores है ना. You must note this fact that around 17% of the entire Ukrainian population are people of Russian ethnicity, है ना. तो वो लोग रशिया के एक तरह से सपोर्टर्स हैं, है ना. तो यूक्रेन को नहीं मतलब रशिया डायरेक्ट थ्रेटन तो कर रहा है, बट द पीपल ऑफ रशियन ओरिजिन आल्सो आर हैम्परिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूक्रेन. It happens to be the second largest country of Europe. The president is the incumbent president of Ukraine is Vladimir Zelensky, है ना. And the currency of Ukraine is hryvnia. Hryvnia is the currency of Ukraine. So these all are the current affairs aspect which I thought are very important for you people, and we tried to discuss it in detail with all of you. आप जो है इसका जो है कॉन्फ्लिक्ट का एक पीडीएफ भी हमने डेवलप किया हुआ है, which will be posted in the link that will be providing, है ना. आप उसको भी डिटेल में पढ़ के और उसके बाद से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विल आल्सो बी देयर. आप उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें, ठीक है ना. दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, एंड इन फ्यूचर विल बी कमिंग अप विद मोर रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि अब जो है अब से लेके और मई तक का जो करंट अफेयर्स है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रेलेवेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, है ना. तो विल बी कमिंग अप इन डिटेल्स अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, है ना. यू स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. आपको कोई कंफ्यूजन होता है, यू ट्राई टू गेट इन टच विद अस, है ना. विल ट्राई रिजॉल्विंग इट, विल ट्राई कमिंग अप विद मोर एक्सप्लेनर वीडियोस, है ना, जिससे आपके प्रिपरेशन प्रोसेस को ऑगमेंट किया जा सके. So this was all, guys. These are our social media links and the contacts. Do visit our Instagram and Telegram channel. Telegram channel पे हम लोग बहुत सारे अपने मटीरियल्स, फ्री मटीरियल्स, पीडीएफ्स को हम लोग पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पे, है ना. सो इफ यू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम मटीरियल चैनल, यू विल बी गेटिंग देम वेरी रेगुलरली एंड ऑल फॉर फ्री, ठीक है. आप इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर लीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, because once we upload any important video you'll get a notification. बेल आइकॉन आप प्रेस कर दीजिएगा, और वो नोटिफिकेशन जो है आपको काफी हेल्प करेगा in a deeper understanding about the future topics that we keep coming with, ठीक है. So this is all for the day, guys. Prepare well. These times are very important, and a deeper understanding of the contemporary issues are equally important for you people. So stay connected with the newspapers as much as you can. That will help you in increasing your reading speed, as well as a deeper understanding regarding the contemporary topic. Stay tuned. Have a safe year. Prepare well. That's all for the day. Thank you.